Hello friends, today we are going to start the new topic. It is very important topic, economic growth and economic development. Let us know the difference between economic growth and economic development. Sometimes the students feel that both are the same, but there are some differences between the growth and development. First of all, we know some introduction about growth and development. We know that over 2/3 of world population lives in underdeveloped countries. They have low living standard and nearly half of them are so poor that they cannot afford use even the basic necessities of life. Means the third world of population, 2/3 are underdeveloped countries of the world, where there is much more poverty. The poverty is so that even the people are unable to fulfill the basic needs. What are the basic needs? Such as bread, clothes, shelter, basic medical facilities, basic education. These requirements are unfulfilled by the people in underdeveloped economy. It means the condition is very dire, very bleak, very bad in the underdeveloped countries. The basic cause of their poverty and underdevelopment is, now what are the causes behind their poverty? They are so much poor, they are unable to fulfill the basic needs. What are the major causes behind this mass poverty? The cause number one is low productivity to inadequate capital supply and outdated technology and consequent lesser utilization of available and potential sources. Now the question arises that what are the major causes behind the dire poverty in the underdeveloped countries? There are so many causes that compel the people of these countries to live in very poor situation. The first is low productivity. प्रोडक्टिविटी लो होता है. लो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है उस देश में जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत लो है, नीचे है. व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द लो प्रोडक्टिविटी? अब प्रश्न होता है कि लो प्रोडक्टिविटी है क्यों, क्या रीजन हो सकता है? तो लो प्रोडक्टिविटी इसलिए लो है बिकॉज इनएडिक्वेट कैपिटल सप्लाई. इफ देयर इज no capital supply, if you want to increase, upgrade your economic condition, you need capital to employ that capital in your productive activities. But मान लो सपोज करो कि एग्रीकल्चर आपके पास है, खेत जमीन है, आप चाहते हो कि अच्छी खेती करें बट
you have no capital. How can you reap a good rich crop? Without capital, no one can reap a good crops. That is why proper sufficient capital is required there. And if someone gets sufficient capital, अगर उसको पूंजी मिल जाती है तो फिर क्या करता है, वो उस कैपिटल को इम्प्लाई करके इन्वेस्ट करके एग्रीकल्चर सेक्टर में और एक अच्छी प्रोडक्टिविटी वो गेन कर सकता है. दैट इज वाई वी नीड कैपिटल. इन लैक ऑफ कैपिटल, प्रॉपर कैपिटल, जो उनकी आर्थिक हालात है वो ठीक नहीं है. तो इसलिए कैपिटल एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन उनके पास कैपिटल इनएडिक्वेट है. आउटडेटेड टेक्नोलॉजी एंड कंसीक्वेंट लेशर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज. टेक्नोलॉजी, हाउ कैन वी गेट टेक्नोलॉजी? If our technology is outdated, if we have no advanced technology, then how can we reap a good crop? That's why we need advanced technology. तो एक टेक्नोलॉजी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि इन देशों में आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है. वो टेक्नोलॉजी जिसकी अब ज़रूरत नहीं है. आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि जिस टेक्नोलॉजी से हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा नहीं सकते. अगर चूंकि हमारे डिमांड बढ़ रहा है, रिक्वायरमेंट्स बढ़ रहे हैं हमारे, दैट्स वाई प्रोडक्टिविटी भी हमें बढ़ाना होगा. एंड इफ वी गेट एडवांस टेक्नोलॉजी, प्रॉपर टेक्नोलॉजी, वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, पर्टिकुलरली इन एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर, वेयर एवर. दैट इज वाई द मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू इनहेंस और इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. एंड देयर इज लेशर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज. मान लो कि आपके पास रिसोर्सेज बहुत है, आप रिसोर्सेज में बड़ा रिच हैं, बट अगर वो रिसोर्स को हम प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करते, इट मीन्स कि डजेंट मैटर दैट यू हैव इनफ रिसोर्सेज, बट इफ अगर ये रिसोर्स को आप सोर्स नहीं बना सकते हो, मतलब ये रिसोर्स को एक्सप्लोरेशन करने की अगर आपके पास क्षमता नहीं है, अगर आपके पास साधन नहीं है, तो फिर वो रिसोर्स बहुत फ़ायदेमंद नहीं होता है. दैट्स वाई हमें उन रिसोर्स को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने की ज़रूरत है. बेहतर तरीके से हम उसको यूटिलाइज करें. जैसे मान लो रिसोर्स क्या होता है, मान लो कि हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड है, बहुत कई एकड़ लैंड है, लेकिन हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, तो उससे तो हमारे प्रोडक्टिविटी बढ़ने को रहा. एंड वी कैन नॉट अपग्रेड आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. दूसरी चीज़ है, हमारे बहुत सारे लोग हैं, ह्यूमन रिसोर्स हैं, पर जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, दे आर नॉट टेक्नोक्रेट्स, दे आर नॉट एजुकेटेड, दे आर नॉट हाईली एजुकेटेड. तो वी हैव ह्यूमन रिसोर्सेज, बट वी कैन नॉट गेट बेनिफिट्स फ्रॉम दैट रिसोर्सेज बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन्ड, दे आर नॉट एजुकेटेड, दे आर नॉट प्रॉपर गाइडेड. दैट्स वाई दे आर रफ resource, they are not sophisticated resources. So we have to train our human resources. और एग्रीकल्चर सेक्टर को भी हम, वो भी एक रिसोर्स है. हमारे और भी बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज हैं that should be explored, that should be utilized properly. Only then we can eliminate the problem of poverty from our society. नेक्स्ट देखेंगे, देखो सम डेलिबरेट एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड. इसलिए ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को दूर ऐसे नहीं किया जा सकता है. इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आप रैंडमली इनको दूर नहीं कर सकते. रैंडमली आप रिसोर्स जनरेट नहीं कर सकते, रिसोर्स को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, रैंडमली लोगों को आप ट्रेन नहीं कर सकते. उसके लिए यू हैव टू मेक सम प्लान. और प्लान भी कैसा होना चाहिए, बिल्कुल क्रूशियल, मैंने बहुत सही डिटरमिन्ड होना चाहिए प्लान में. तो डेलिबरेट एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड इनकम लेवल्स थ्रू इंक्रीज पेस ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो बहुत ज़रूरत है कि जब आप समस्या समझ रहे हैं, प्रॉब्लम समझ रहे हैं, तो इकोनॉमी में क्या होता है, जो प्रॉब्लम्स है वही समाधान होता है. तो मान लो कि अगर हम बहुत सारे सही तरीके से
हम अगर एफर्ट्स लगाते हैं तो वी कैन इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड इनकम लेवल बोथ। अब अगर प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ जाती है, हमारे देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर का हो या इंडस्ट्री सेक्टर का हो या सर्विस सेक्टर का हो, तो निश्चित रूप से आर इनकम लेवल विल इंक्रीज। माने वी विल एबल टू इंक्रीज द इनकम लेवल इफ वी इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी कंपेयर्स it frustrate our income level, but when the productivity increases, the income level also increases through increased pace of investment. अब कैसे होगा? How can we increase income and productivity? अब प्रश्न ये होता है, बहुत अच्छी टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, इकोनॉमिक के लिए, पीटी के लिए हो या मेंस के लिए हो, किसी भी एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको आपको समझना है कि अब हाउ कैन वी इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड इनकम लेवल्स को कैसे करेंगे? तो इंक्रीज पेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट एंड बेटर यूजेज ऑफ ह्यूमन मटेरियल एंड नेशनल रिसोर्सेज। तो अब क्या करेंगे कि इन्वेस्टमेंट के लेवल को बढ़ाएंगे, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट करेंगे एंड बेटर यूज ऑफ ह्यूमन मटेरियल एंड नेशनल रिसोर्सेज। यानी जो भी आपका टेक्नोलॉजी है या ह्यूमन रिसोर्स है, मटेरियल है और नेशनल जो रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में आप बहुत सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, इनको इम्प्लॉय करेंगे और इनको उसमें लगा करके, इन्वेस्टमेंट करके, नई टेक्नोलॉजी को लगा करके, और हमारा जो बेटर यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है, यानी हम ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपर वे में ट्रेन करके, एजुकेट करके, और जो मटेरियल्स और नेशनल रिसोर्स हैं उनका सही ढंग से हम इस्तेमाल करके वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ कंट्री। एंड व्हेन द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ कंट्री इंक्रीज, द इन्वेस्टमेंट, द पर कैपिटा इनकम विल आल्सो इंक्रीज एंड अल्टीमेटली द पीपल विल एंजॉय अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। और जो दिक्कतें उनकी स्ट्रिंजेंसी हैं, जो टर्मेंटेशंस हैं, उनकी जो कठिनाइयाँ हैं, दैट विल बी एलिमिनेटेड ऑटोमेटिकली। दैट्स वाई एनी हाउ अ कंट्री शुड इंक्रीज द national income, the productivity. It is the driver of any economy. If your GDP is, if your national income is increasing or is very sound, it means the people will also enjoy the good standard of living in that very country. So the growth rate is the main driver, chief driver of any economy. This process by which productivity and income levels in the economy are increased over time is called economic growth. अब इसी प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से आप बहुत अच्छे से समझ गए, मैं इसको फिर से रिपीट कर दूंगा आपको। दिस प्रोसेस बाय विच, इस प्रोसेस से जिससे कि प्रोडक्टिविटी एंड इनकम लेवल ऑफ इकोनॉमी आर इंक्रीज ओवर टाइम इज कॉल्ड, इसी को कहते हैं हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। क्लियर है? तो किस प्रोसेस से कोई देश की इकोनॉमी बेहतर हो सकता है? हाउ कैन वी इंक्रीज, हाउ कैन वी डेवलप अ पर्टिकुलर इकोनॉमी इफ द इकोनॉमी इज अंडर डेवलप्ड? तो बहुत क्लियर तरीके से हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन और 2/3 पॉपुलेशन इज compelled to live very dire life, very poor conditions, and they have low standard of living. They are unable to fulfill the basic needs like bread, clothes, shelters, and these are really the challenges for those people who are living in the underdeveloped countries. India is also an underdeveloped country. The people are also deprived of the basic needs in our country. Many people are not getting the basic needs. That's why there are the big challenges in the before the people of our country. The basic cause of their poverty and underdevelopment. तो कुछ ना कुछ तो रीजन है जिसकी चर्चा हमने किया है। तो निश्चित रूप से रीजन है कि ड्यू टू दी लो प्रोडक्टिविटी, बिकॉज द प्रोडक्टिविटी इज लो,
Why the productivity is low? Because we have less capital, we have less investment, our technology is outdated, and our resources are not optimally used. Therefore, that's why we are compelled. We are compelled to live a very penuric life, very stringent life. That's why to face the challenges, to sort out these problems, there are some deliberate efforts, कुछ प्रयास किए जाते हैं जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़े। अब कैसे बढ़े? तो निश्चित रूप से जो प्रॉब्लम है हमने बताया है कि टेक्नोलॉजी लाइए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए, इनकम लेवल बढ़ेगा तो फिर हम बेटर लाइफ हमारा होगा। और इसी प्रोसेस को, मतलब कि जो गरीबी को दूर करने की जो प्रोसेस प्रक्रिया होती है, जो उपाय लिए किए जाते हैं, अपनाए जाते हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स को, उस प्रक्रिया को ही कहा जाता है जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े और इनकम लेवल भी बढ़े। दिस वेरी प्रोसेस इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इनको आर्थिक वृद्धि या विकास दर जो कहें वो कहें। अब आगे हम डिटेल्स में फिर ये समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ sustained increase in real income, national income over a long period of time। अब देखेंगे नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ the value of all final goods and services produced in a necessary adjustment. Now, in the next lecture, I will discuss about the national income. But यहाँ पे कह रहा है क्या कि economic growth and economic development can be defined as the process of sustained increase in real income over a long period। अगर आपके real income यानी देश के national income अगर कंटिन्यू कुछ दिनों तक के, लगातार कुछ लंबे समय तक के लिए अगर वो मेंटेन रहे, अगर ऐसा विकास होता रहे, तो नेशनल इनकम इज द, इसको हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ है या डेवलपमेंट है। अभी नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द नेसेसरी एडजस्टमेंट। इन एडजस्टमेंट करने के लिए किसी भी देश का नेशनल इनकम को दर्शाया जाता है लॉन्ग पीरियड में कि उस देश के अंदर फाइनल गुड्स और सर्विसेज का क्या वॉल्यूम है, किस वॉल्यूम में कितना वो हो रहा है देश के अंदर। तो अब जान लो कि देश के नेशनल इनकम के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे, फिर आगे आपके जो टॉपिक्स होंगे नेशनल इनकम के बारे में बताएंगे। तो नेशनल इनकम का मतलब होता है कि आप एक साल के अंदर में जो भी नेशनल, राष्ट्र के अंदर में, इनके अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे GDP हो गया, GNP है, NNP है, DIP है, डिफरेंट टाइप, देयर आर वेरियस कंसेप्ट वी स्टडी अंडर द नेशनल इनकम। लेकिन इस नेशनल इनकम के बारे में ये अभी जानना हमें है कि किसी भी देश के अंदर अगर इवन एक फिस्कल ईयर में, मतलब करंट फिस्कल ईयर में जो प्रोडक्शन अवेलेबल होता है, चाहे वो गुड्स का हो या सर्विसेज का हो, फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्शन एंड सर्विसेज, एंड व्हाट इज द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, बहुत शॉर्टकट में हम आपको बताना चाहेंगे। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब होता है कि दैट इज द लास्ट प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, मीन्स द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स द गुड्स विच आर अवेलेबल फॉर कंजम्पशन, नॉट फॉर सेलिंग एंड रीसेलिंग। मतलब कि जो पब्लिक को कंज्यूम करने के लिए मिलता है, दिस इज द लास्ट प्राइस होता है। एक सिंपल उदाहरण इसका हम ऐसे एग्जांपल से आपको कोट करेंगे कि जिस कीमत पर कोई कंज्यूमर खरीदता है या रिटेलर बेचता है, दिस इज द फाइनल गुड्स, दिस इज द फाइनल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि कोई भी जो गुड्स होता है पब्लिक तक पहुंचते 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 वो मल्टीपल टाइप में बिक जाता है। अब एक उदाहरण के लिए इसकी कॉम्प्लिकेशंस हमें क्लियर करना होगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मान लो कि अगर कोई चीज़, अगर शुगर को एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो शुगर पब्लिक तक पहुंचते पहुंचते मेनी टाइम्स वो बिक जाता है, कई टाइम्स बिक जाता है, कई बार सेलिंग रिसेलिंग होते, और अल्टीमेटली द पीपल मीन्स द कंज्यूमर परचेज फॉर देयर ओन कंजम्पशन। तो दिस इज द फाइनल प्राइस, एट द फाइनल प्राइस द कंज्यूमर परचेज एंड द रिटेलर सेल्स,
and retailer also have to purchase from the wholesaler and wholesaler also purchase from the others. That's why every price is not added in the national income. The final price means the price at which the consumer purchase for their consumption, not for resale, and the retailer sells. This is called the final price of goods and services. तो यहाँ पे देखना है कि national income is the sum total of all final goods and services produced in the necessary adjustment. To find the real national income, the money value of final goods and services is deflated by the price index to eliminate the changes that might have taken place taken place to the value of national output owing the changes of the price level. This rate of increase in the real national income indicate the growth rate. अब यहाँ पे ये देखेंगे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एक सामान को पब्लिक तक जाते जाते वो कई बार बिक जाता है, इसलिए वो सारे एडजस्टेड रहते हैं। मतलब कि जो फाइनल गुड्स को ही हम नेशनल इनकम में जोड़े जाते हैं और वो जो जुड़ता है नेशनल इनकम उससे बनता है, तैयार होता है, और वही जो इंडिकेट्स द ग्रोथ रेट ऑफ द इनकम। अब एक साल के दौरान कितना का प्रोडक्शन हुआ उसको हम ग्रोथ रेट के इकोनॉमी के ग्रोथ रेट में जोड़ा जाता है। अब मान लो कि एक साल के अंदर में 1 लाख करोड़ का प्रोडक्शन हमारे देश के अंदर होता है फाइनल गुड्स में, चूँकि अगर उसको आप कई स्टेप पे आप जोड़ेंगे तो हो सकता है कि 2.5 लाख हो जाए। तो 2.5 लाख तो होता नहीं है, रियल इनकम तो होता है 1 ही लाख करोड़ रुपया होता है। 1 लाख करोड़ रुपया का अगर प्रोडक्शन हमारे देश में होता है तो दिस इज द रियल इनकम हमारी कंट्री का होता है, और इसी ग्रोथ रेट को हम इकोनॉमी का ग्रोथ रेट कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ, द इंक्रीज इन द रियल इनकम नेशनल इनकम शुड बी ओवर अ सब्सटेंशियली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें दिया है कि अगर कभी कभी अब ये ग्रोथ रेट इंक्रीज इन द रियल इनकम नेशनल इनकम शुड बी ओवर अ सब्सटेंशियली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये लंबे समय तक दिखाई देना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए। A sudden expansion of economic activity over a short period is not the indicator of economic growth. अब मान लो कि कभी कभी क्या होता है कि कभी एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, कोई आदमी अगर एक दिन में एक महीने में वो 40,000 रुपया कमा लेता है, और लेकिन वो 40,000 रुपया तो कमा लिया किसी कारण से, किसी प्रोसेस से, पर फिर उसकी इनकम महीना का 5,000 हो जाता है। तो ऐसे में वो ग्रोथ वो ठीक नहीं रहता है, उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कहते। इट मे सून बी फॉलोड बाय द रिसेशन। तो कह रहा है क्या कि सडन एक्सपेंशन ऑफ, यहाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना है, एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर शॉर्ट पीरियड में इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाता है इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो यह इकोनॉमिक ग्रोथ का नहीं होता है, साइन नहीं है, बिकॉज इट मे सून बी फॉलोड बाय द रिसेशन। क्योंकि जब रिसेशन के दौर होता है, मंदी के दौर होता है, तो मंदी के दौर में बिल्कुल इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाता है, और इस स्लो डाउन इकोनॉमी में जो भी ग्रोथ होता है वो लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, पर ऐसे ग्रोथ को हम नेशनल इनकम के ऊपर में या ऐसे ग्रोथ को हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर में नहीं लेते हैं। क्योंकि हम जब इकोनॉमी बिल्कुल मंदी के दौर में आता है, बिल्कुल रिसेशन के दौर में आ जाता है, जैसे कोविड फैक्टर, अभी हमारे दुनिया में कोविड फैक्टर ने वो दिक्कतें किया, जिसके कारण बहुत इकोनॉमी स्लो डाउन में आ गया। उसके बाद जो भी ग्रोथ हो रहा है वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि बहुत ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है, पर वो दैट ग्रोथ इज नॉट इकोनॉमिक ग्रोथ, वो बेनिफिशियल नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्लाइज अ सस्टेन्ड एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर अ लॉन्ग पीरियड। इकोनॉमिक ग्रोथ उसे कहते हैं जो कि एक सस्टेन्ड ग्रोथ है। मान लो कि इंडिया का अगर ग्रोथ रेट 8% है, तो 8% लगातार 10 साल, 12 साल, 20 साल, 25 साल तक लगातार बना रहेगा, only then we will able to combat these chronic problems of the masses. Otherwise वो फिर हम वहीं पे पहुंच जाएंगे, फिर उसी गरीबी में पहुंच जाएंगे। That's why sustained growth is mandatory for to provide the basic needs to the people, to the masses of the country. That's why we need sustainable growth, जो कि ग्रोथ लगातार चले तो कुछ दिन तक लगातार चलता रहे। सस्टेन्ड ग्रोथ, प्रोलॉन्ग्ड ग्रोथ होना चाहिए, इसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। नेक्स्ट, मेनी इकोनॉमिस्ट व्यू पर कैपिटा इनकम। अब देखेंगे, बड़ा अच्छा थ्योरी है भाई,
बहुत सारी इकोनॉमी का माना है पर कैपिटा इनकम एक बेटर इंडेक्स होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। बहुत बढ़िया बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टडीड that the income should be increased. The another we have seen that the per capita the national income should be increased. निश्चित रूप से अगर ग्रोथ रेट, अगर हमारे देश का नेशनल इनकम बढ़ता है तो इट विल अपग्रेड द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक standard of the people of standard of the life of the people. And the another economists they think that कि पर कैपिटा इनकम एक बेटर इंडेक्स होता है ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, नो डाउट होता है, and development because the per capita income is fairly suggestive for the people's standard of living. निश्चित रूप से undoubtedly the per capita income can increase it means the income is increasing in our country, and income is increasing in our country, it means the people are availing that and the people are getting benefits of the income. If the per capita income is decreasing, it means the people have less purchasing power. So if the purchasing power is increasing, if the per capita income is increasing of the people, निश्चित रूप से they will lead a very good standard of living. If the process of economic growth is to have any meaning of the masses living in poverty and starvation. अब कह रहा है कि अगर process of economic growth is to have any meaning for the masses living in poverty and starvation. Starvation का मतलब होता है भीषण गरीबी होता है, poverty का मतलब भी होता है भीषण गरीबी होता है. The rise in the real per capita income and the consequent increase in living standard would certainly be the better indicator of the economic development. ध्यान देंगे तो चर्चा यहाँ पे कई सारे इकोनॉमिस्ट they think that the per capita income, by per capita income we can increase the standard of living of the people. It is the better symptom of it is a better sign of economic growth and economic development because कि the per capita income is fairly sensitive for the people to standard of living. बिल्कुल सही है, अगर per capita income नहीं बढ़ेगा तो standard of living भी नहीं बढ़ेगा. That's why the per capita income is very important. The per capita income is very supportive to increase the standard of living of the masses. If the process of economic growth to have any meaning of the masses living in poverty and starvation, अगर वो है the rise in real per capita income and the consequent increase in living standard would certainly better indicator of the economic growth. तो निश्चित रूप से per capita income में rise अगर होता है तो निश्चित रूप से standard of living में भी rise होगा and they will lead a very good life, good standard of life, living standard उनका high होगा. Next, in the most recent literature on the subject, there has been a growing emphasis on defining economic growth or development. अब आप देखें कि इनमें भी terms of rise in per capita income, productivity और an increase in the production capacity of the nation. अब यहाँ पे बहुत सारे लिटरेचर में मतलब साहित्य में इस सब्जेक्ट पे आया है कि देयर हैज बीन ग्रोइंग एम्फेसिस डिफाइनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी बहुत सारी चीजें आई हैं इन टर्म्स ऑफ राइज इन पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी और एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द नेशन. इकोनॉमिक डेवलपमेंट एम एट, अब यहाँ पे देखना है, थोड़ा सा समझना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास जो होता है एम्स एट बिल्डिंग अप ग्रेटर प्रोडक्शन कैपेसिटी. मतलब ये क्या करता है कि बिल्डिंग अप ग्रेटर प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाता है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो उद्देश्य होता है कि हाउ टू बिल्ड अप ग्रेटर प्रोडक्शन कैपेसिटी because rate of growth of national income in future depends upon the productive capacity thus generated. क्योंकि किसी भी देश का जो रेट ऑफ ग्रोथ है नेशनल इनकम का और भविष्य में डिपेंड करता है कि उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी कितनी मजबूत है. इसको आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर में होता आधारभूत संरचना या अवसंरचना. यदि आपकी इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है, साउंड नहीं है, इट मीन्स कि ग्रोथ रेट विल ऑल्सो डिक्लाइन, इट नेवर बी इंक्रीज्ड.
दैट इज वाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो टारगेट होता है, हाउ टू बिल्ड अप greater production capacity, because the great growth rate of any economy is based on the production capacity. If the production capacity is low, the growth rate will also low, and if the production capacity is high, the growth rate will also high. Therefore, increase in stock of capital goods and the progress of scientific knowledge are considered as the essential prerequisite of economic development because they help to increase the efficiency of the people. तो इससे क्या है कि increase in the stock of capital goods, आप capital goods को बढ़ाइए and progress of scientific knowledge को बढ़ाइए. अगर आप ये सब चीज बढ़ाते हैं तो इनकी बहुत जरूरत होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, बिकॉज दे हेल्प टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द पीपल. समझ गए? मतलब अगर आप लोगों की एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं तो वी हैव टू ट्रेन देम विथ साइंटिफिक नॉलेज. अगर उनकी नॉलेज बढ़ जाएगी, कैपिटल बढ़ जाएगा. मेरे अगर देश के अंदर कैपिटल बढ़ जाए, कैपिटल गुड्स बढ़ जाए, अगर साइंटिफिक नॉलेज हो जाए हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को अगर, तो वो क्या होगा, ये सब जरूरी होता है. विदाउट एडवांस्ड नॉलेज एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यू कैनॉट मल्टीप्लाई योर प्रोडक्शन, you cannot multiply your output. That's why it is very, very important for the economic development that there should be trained manpower, the trained human resources, as they have scientific knowledge, and our technology is also advanced, and we have adequate capital resources. These are the prerequisite for the economic development of any country. If we are capable to manage these things, your economy, our economy will definitely go up. Next, to include economic growth and development signifies a process of changes. To conclude देखेंगे कि economic growth and development signifies a process of changes in the overall economic activity. मतलब कि ये क्या करता है, इनका टारगेट है कि पूरी तरह से इकोनॉमिक को ओवरऑल क्या करना, चेंज करना in the overall economic activity, and is not to be confused with some scattered development in some parts of the economy. मतलब कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो पूरी इकोनॉमी को क्या करना, बदलने की बात है, नया करने की बात है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिक्वायर्स द जनरेशन ऑफ फोर्स ऑफ इकोनॉमिक चेंज. देयर मे बी अ फ्यू आइसोलेटेड पॉकेट्स ऑफ डेवलपमेंट इवन इन सम पार्ट्स ऑफ एन अंडर डेवलप्ड कंट्री. अब अंडर डेवलप्ड कंट्री में देखते हैं कि फ्यू आइसोलेटेड पॉकेट्स ऑफ डेवलपमेंट, कुछ सेक्टर में डेवलपमेंट होता है और कुछ सेक्टर में डेवलपमेंट नहीं भी होता है. But this does not mean that the whole economy is undergoing a change. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी में चेंजेज आ रहे हैं. कहीं पर कोई पर्टिकुलर सेक्टर में चेंज आता है, किसी एरिया में चेंज आता है. इसका मतलब ये नहीं कि हमारी पूरी इकोनॉमी में चेंज आ रहा है. Economic development refers to only those changes which gather momentum and continuously lift the whole economy to the higher level of the economic activity. अब मान लो एक मिनट के लिए कि अगर आपके मोहल्ले में, कॉलोनी में, फैमिली में कुछ लोग रहते हैं, बहुत लोग रहते हैं. अब उस फैमिली में किसी एक व्यक्ति का, एक घर का अगर मेंबर का विकास हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए, बहुत आगे निकल जाए, वो आइसोलेटेड ग्रोथ, दिस इज कॉल्ड आइसोलेटेड ग्रोथ. अब वो आप उसके घर के कोई डॉक्टर बन जाए, कोई आईएएस बन जाए, कोई बड़ा सा टेक्नोक्रेट बन जाए, तो ये दिस इज डेवलपमेंट ऑफ दैट फैमिली ओनली, नॉट द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड कम्युनिटी, दैट कम्युनिटी. दैट इज वाई यहाँ पे ये कह रहा है कि आइसोलेटेड अगर ग्रोथ हो रहा है कहीं पे,
तो इसको हम विकास नहीं कहते हैं, दिस इज नॉट द डेवलपमेंट। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि वो चेंजेस जो गैदर मोमेंटम एंड कंटिन्यूअसली लिफ्ट द होल इकोनॉमी टू द हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जो पूरे इकोनॉमी को, पूरे देश की इकोनॉमी को वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में लाए, जोड़े। मतलब ओवरऑल आपके देश का इकोनॉमी अगर बढ़ रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रहे हैं, the standard of living is becoming higher and higher, the income is also increasing higher and higher, it means this is the, it means your overall economy is increasing, this is called economic development। क्लियर है? ये नहीं है कि कुछ कोई अगर मान लो कि इंडिया आज भी एक डेवलपिंग कंट्री के रूप में या अंडर डेवलप्ड कंट्री के रूप में जाना जाता है, गुजरात तो इसका डेवलप्ड स्टेट है, महाराष्ट्र डेवलप्ड स्टेट, बट वाई इंडिया इज बिकॉज द बिहार इज वेरी बैकवर्ड स्टेट, उत्तर प्रदेश इज समथिंग बैकवर्ड, एंड देयर आर मेनी स्टेट्स दे आर कंपेल्ड टू live on margins. That's why India is not a developed country. Next, economic development, a wider concept. Now we see the wider concept of economic development. इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में एक बहुत विस्तृत धारणा क्या होता है, व्यापक धारणा के रूप में हम क्या समझते हैं। हमें लग रहा है कि बहुत आसानी से आप समझ रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, क्योंकि अर्लियर वी हैव सी दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ टोटली डिपेंड अपॉन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मीन्स कि इफ वी आर कैपेबल टू बिल्ड अप इंफ्रास्ट्रक्चर, in that case the productivity and the growth rate will also increase. In the earlier literature, the term economic growth and economic development were used more and less as synonyms. अब पीछे के जो अभी हमने देखा कि लगभग दोनों को मिला करके देखा तो बहुत ज्यादा अंतर दिखाई नहीं दिया, कि लगभग दोनों एक दूसरे का क्या है, सिनोनिम्स है, मतलब समानार्थक। निश्चित रूप से सिनोनिम्स तो हैं, लेकिन सिनोनिम्स हैं लेकिन उनका एप्लीकेशन अलग अलग होता है। किसी भी वर्ड के कई सारे समानार्थक मीनिंग होते हैं, लेकिन उनके मतलब यूज अलग अलग जगहों पे होता है, यूज्ड मोर और लेस एज सिनोनिम्स। बोथ डिनेटिंग, दोनों का कहना है कि सस्टेन इंक्रीज इन कंट्रीज रियल जीएनपी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब दोनों में हमने देखा, ग्रोथ में भी देखा, उसमें भी डेवलपमेंट में भी देखा, दोनों का यही कहना है कि सस्टेन इंक्रीज इन कंट्रीज रियल जीडीपी ओवर लॉन्ग टाइम। अदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट अब ये कि एक हमारा जो सस्टेन ग्रोथ हो, हमारे जीएनपी का सस्टेन ग्रोथ हो, मतलब कि हमारे देश का नेशनल इनकम का सस्टेनेबल ग्रोथ हो। दूसरे ऑब्जेक्टिव्स हैं डेवलपमेंट सच एज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड पॉवर्टी एलिविएशन were mentioned only casually, as it was believed that the trickle down effect increase would automatically assure the realization of these other objectives। देखिएगा एक नया चीज है यहाँ पे। तो आपने देखा कि अभी तक जो हमने बताया इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इसमें देख रहा है कि सस्टेनेबल जीएनपी की बात कर रहे हैं कि हमारा जो जीएनपी हो, नेशनल इनकम हो, टिकाऊ होता रहे ताकि हमारा ग्रोथ भी हो और हमारा डेवलपमेंट भी हो। लेकिन यहाँ पे कहा रहा है दूसरे एक चीज है, एक ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है कि नहीं। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड पॉवर्टी एलिवेशन, these three are the very major factor to bridge up the gap between the poor and the rich. By generating employment, we can redistribute income among the people. We can create employment, or through this process the poverty will be also alleviated. If someone gets employment, he will earn, he will be salaried, and निश्चित रूप से उनके जो गैप है अमीर गरीब का जो है, रिच और पुअर का, वो धीरे धीरे क्या होता है,
तो बहुत जरूरी होता है ऐसे इसमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम तो है, जैसे हमने बताया कि मोहल्ले में एक घर का लोग डॉक्टर बन गया, आईएएस बन गया, वगैरह वगैरह बन गया और बाकी के लोग कुछ नहीं बना, तो इनकम तो एक लोग के पास है। तो अगर गवर्नमेंट बाकी लोग को भी अगर या जो हमारे जो प्लानर्स हैं अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में सक्षम होता है तो फिर क्या होगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है ऑफ इनकम एंड पॉवर्टी एलिवेशन वर मेंशन ओनली कैजुअली एज इट वाज बिलीव दैट द ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन जीएनपी। अब ट्रिकल डाउन क्या होता है? ट्रिकल डाउन का मतलब होता है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है जीएनपी का वो ऑटोमेटिकली वो क्या हो कि ट्रिकल डाउन का मतलब कि बड़े लोगों तक ही सीमित ना हो। ग्रोथ, ट्रिकल डाउन का मतलब जो ग्रोथ हो लेकिन जो उसके लोग, जो निचले तबके के लोग होते हैं, आम आदमी होते हैं, जो छोटे लोग होते हैं, जो रोज़गार में काम करने वाले लोग होते हैं, जो डेली वेजेस पर काम करने वाले लोग होते हैं, जो हॉकर्स हैं, जो इस तरह के लोग हैं, उन इनकम का इम्पैक्ट उन पे भी बहुत हद तक पड़े अगर शुरू हो जाए पढ़ना। तो दिस इज कॉल्ड ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑफ इंक्रीज, यानी जीएनपी बढ़ेंगे तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी होगा और लोग ऑटोमेटिकली क्या करेगा, लोगों की इनकम को बढ़ा देगा। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो रियलाइज होंगे, मतलब कि वो पूरे होंगे। However, lately it was realized that the economic growth sustained increase in country's real per capita income। अब कह रहा है कि रियल पर कैपिटा जीएनपी, इसके बाद कह रहा है क्या, फिर भी इट वाज रियलाइज दैट द इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेन इंक्रीज इन कंट्रीज। अब हमारे देश का जो कंट्री का जो है जीएनपी है, रियल जीएनपी है, रियल पर कैपिटा जीएनपी में मतलब कि रियल में वास्तविक रूप में देश के आम आदमी का इनकम बढ़े। वो फॉर्मूला से नहीं बढ़े कि एक तो गुना भाग कर लिए पर कैपिटा इनकम निकल गया, नहीं। अब ट्रिकल डाउन थ्योरी का मतलब होता है कि जो भी सरकार योजना बनाए, प्लान बनाए, स्कीम्स बनाए, ऐसे ही स्कीम्स बनाए कि जिसमें कि जो नॉन इकोनॉमी मैन है, मतलब कि जो बिल्कुल मार्जिन पे लाइफ जी रहे हैं, बिल्कुल पुअर सेक्शन के लोग हैं, उनके लिए योजना में प्रावधान किया जाए सो दैट कि वो डेवलपमेंट का इंक्रीज, जो हमारा जीडीपी में इंक्रीज कर रहा है उसका बेनिफिट उससे मिले। तो दिस इज कॉल्ड ट्रिकल डाउन थ्योरी। और रियल पर कैपिटा जीएनपी में जो पर कैपिटा है, प्रति व्यक्ति वास्तविक इनकम बढ़े, ना कि फॉर्मूला से बढ़े कि बढ़ तो गया, बाद में क्या होता है, इसको हम कहते हैं क्रोकोडाइल। एक टर्म आता है CROCODILE, क्रोकोडाइल जॉय सिंड्रोम। जॉय सिंड्रोम इकोनॉमी में आता है, ध्यान देंगे, क्रोकोडाइल का सिंड्रोम। ये क्या होता है कि आप देखते हैं कि आए दिन हर एवरी ईयर द नीति आयोग एंड CSO रिलीज द डेटा ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कि हमारा देश का जीडीपी इतना है, इतना बढ़ गया, पर कैपिटा इनका इतना बढ़ गया। पर जब पूछा जाता है कि भाई पर कैपिटा इनकम तो बढ़ गया लोगों का, 1 लाख से 1,05,000 हो गया, 1.5 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, पर जब पूछा जाता है आम आदमी से कि क्या आपकी इनकम में क्या चेंजेस हुआ, तो बोला कि नहीं मेरे तो कोई इनकम ही नहीं है, या फिर मेरे इनकम तो और घट गए हैं। तो दिस इज कॉल्ड अनरियल परचेजिंग पर कैपिटा इनकम। अनरियल पर कैपिटा इनकम का मतलब दिस इज जस्ट द फॉर्मूला बेस्ड कि बढ़ा। अब किसी का बहुत बढ़ गया, लोग पे वो लगा दिया गया कि भाई आपका भी बढ़ा, एवरेज निकाल दिया गया, लेकिन ये एवरेज नहीं कर रहा, रियल पर कैपिटा जीएनपी वास्तविक रूप से कि हाँ लोगों की इनकम बढ़ी, जो सब्जी बेच रहा है रोड पे बैठ करके, जो कोई काम कर रहा है, जो अपना बिजनेस कर रहा है, उन सारे लोगों की अगर इनकम बढ़ी, इट मीन्स कि रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ी। डिड नॉट मीन एनी गेन टू a vast majority of population in the less developed country as their poverty and malnutrition continued unabated। अगर ये नहीं बढ़ेगा, अगर इस तरह का इनकम नहीं बढ़ेगा, रियल जीएनपी नहीं बढ़ेगा, आम आदमी को अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। अब मान लो कि अगर कल को डेट में आप अंबानी बहुत बढ़ गया, अडानी बढ़ गए, टाटा बढ़ गया, बिरला बढ़ गया, तो उन सब तो दे आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द इंडियन इकोनॉमी, और पर कैपिटा इनकम निकाला जाएगा। तो फिर जब उनकी बढ़ेगा तो हमारा भी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, पर हमें क्या उसका फायदा? तो हमें फायदा मिलना चाहिए। गवर्नमेंट शुड प्लान, गवर्नमेंट शुड चॉक आउट द प्लान बाय विच वी कैन बी बेनिफिटेड, वी कैन एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ द बेनिफिट। अदरवाइज
फिर क्या होगा, क्रोकोडाइल जॉ सिंड्रोम, कुछ तो मिलेंगे। जब डेटा आएंगे, आंकड़े आएंगे कि इस साल भारत का जो जीडीपी रहा है वो 9% रहा है, ठीक है, ये अच्छा लगा कि 9%, 10% हो गया, डबल डिजिट में पार कर गया, इट इज ऑल्सो वेरी गुड सिम्टम फॉर द इंडियन इकोनॉमी। फिर बताया गया कि भाई 93,000 से बढ़कर के वो 1,10,000 पर कैपिटा इनकम हो गया, ये भी अच्छी बात है, अखबार में पढ़े। पर जब विन करके देखे तो मेरी तो इनकम और 70,000 हो गया 1 लाख से घट करके, तो दिस इज नॉट द प्रॉपर रियल जीडीपी। और इस रियल जीडीपी अगर नहीं बढ़ेगा तो वी विल आल्सो कंपेल टू लिव वेरी, यानी मतलब कि हमारा जो पॉवर्टी है और माल न्यूट्रिशन है वो कभी कम नहीं होगा। दैट्स वाई हमारे माल न्यूट्रिशन, कुपोषण एंड पॉवर्टी को कम करना है, अगर हमारे दुखों को, प्रॉब्लम्स को कम करना है, द गवर्नमेंट शुड chalk out the plans for to increase the real growth, real increase in the real per capita GNP, मतलब कि वास्तविक रूप से जो हमारी इनकम बढ़े उस पे जोर देना है, न कि फॉर्मूला बेस कि भाई आपका जीडीपी में परसेंटेज तो इतना बढ़ गया, पर कैपिटा इनका इतना बढ़ गया। तो इसके बढ़ने से हमारी कुपोषण, हमारी गरीबी, हमारी कमियां दूर नहीं होगी। जरूरत है कि हमें वास्तविक रूप से इनकम बढ़ाने होंगे, मतलब कि चाहे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करके, चाहे मनरेगा जैसे कार्यक्रम को और इफेक्टिव बनाइए। 100 दिन के जगह पर 150 दिन रोजगार दिया, 150 दिन के जगह पर 200 दिन रोजगार दीजिए, उसके बाद आप 300 से 500 कीजिए, 400 कीजिए, ताकि रियल में वास्तविक रूप से हमारी इनकम बढ़े एंड इट विल बूस्ट द इंडियन इकोनॉमी या एनी इकोनॉमी। और तब जाकर के जो माल न्यूट्रिशन है, जो कमियां हैं, जो पॉवर्टी है, वो कमेगा। अदरवाइज वो डेटा से गरीबी और कुपोषण नहीं कमने वाला है। Therefore, the concept of development was redefined in terms of elevation of poverty. इसलिए ऐसे नहीं होता है, तब कहा गया कि नहीं, डेवलपमेंट को फिर से रिडिफाइन किया गया और कहा है कि नहीं, इसका मतलब है, डेवलपमेंट का मतलब है कि आर वी रेडी टू एलिवेट द पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री, इन आवर कंट्री, और रिडक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्या हम अनएम्प्लॉयमेंट कम कर रहे हैं, क्या हम इनइक्वालिटी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कर रहे हैं। मतलब कि अगर हम इनको कम कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। इफ द डेवलपमेंट प्रोसेस, whatever process the government has adopted is able to decrease, to reduce poverty, to reduce unemployment and to reduce inequality in the income distribution, it means we are developing, हम बढ़ रहे हैं, हमारी इकोनॉमी, आर्थिक विकास हो रही है, अदरवाइज नहीं। तो अब विकास का मतलब ये होता है कि गरीबी कम हो, बेरोजगारी कम हो और कुपोषण भी कम हो। अगर ये है, इट मीन्स दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगेंस्ट द नैरो concept of economic growth which conform only to increase the real, जबकि एक नैरो, इसके दूसरी अगर देखेंगे तो एक नैरो कंसेप्ट इकोनॉमिक ग्रोथ का होता है। ग्रोथ में है कि हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है कि नहीं, जीएनपी बढ़ रहा है कि नहीं, कन्फाइन ओनली टू इंक्रीज इन रियल जीएनपी पर कैपिटा, जीएनपी बढ़ रहा है कि नहीं, पर कैपिटा बढ़ रहा है कि नहीं। The concept of economic development has been made much wider, encompassing larger dimension of economic change. लेकिन ये ठीक नहीं है सिर्फ, तो दोनों दो चीज है। इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ हो, कोई जरूरी नहीं है कि इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि हमारे डेटा कितना इफेक्टिव है, कितना डेटा साइनिंग है। मतलब हमारा जीडीपी इतना % हो गया, मेरा इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक है, हमारे देश में पर कैपिटा इनकम बढ़ गया, ये भी हमारा ठीक है, वेरी गुड साइन। हम ये नहीं, आई एम नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग दैट बाय कि इफ द पर कैपिटा इनकम इज इंक्रीजिंग, इफ द नेशनल इनकम इज इंक्रीजिंग, इट मींस कि पॉवर्टी इज नॉट एलिवेटिंग। हम ये नहीं कह रहे हैं पॉवर्टी इज नॉट एलिवेटिंग, एम्प्लॉयमेंट इज नॉट जनरेटिंग, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं। जीडीपी से बढ़ने से निश्चित रूप से पॉवर्टी में कमी आती है।
एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, लेकिन फिर भी उसमें वो बहुत ही जस्टिफाई तरीके से ऐसा नहीं, फिर भी इनइक्वलिटी बना रहता है। इसलिए लेकिन जब डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट होने का मतलब, सोसाइटी का डेवलपमेंट होने का मतलब कि वो जो इनइक्वलिटी है वो धीरे धीरे कमना शुरू होता है। ये कह रहा है। अब यहां पे देखेंगे तो ये मच वाइडर इनकम्पासिंग लार्जर डायमेंशन ऑफ इकोनॉमिक चेंज अकॉर्डिंग टू किंडल बर्गर एंड ब्रूस हैरिक का मानना है। देखिए, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे जो लोग हैं, जो आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी ऑनर्स वगैरह में जो कर रहे हैं, वो इनके बारे में जान लें कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है। अब ब्रूस हैरिक क्या मानना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज दी जनरली डिफाइंड टू इंक्लूड इंप्रूवमेंट इन मटेरियल वेलफेयर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि मटेरियल वेलफेयर का विकास हो, स्पेशली पर्सन विद द लोएस्ट इनकम, एराडिकेशन ऑफ मास पॉवर्टी विद द कोरिलेट्स ऑफ लिटरेसी, डिजीजेज एंड अर्ली डेथ, change in the composition of input and output that generally includes shift in the underlying structure, production of agriculture towards, बहुत सारी बातें देखिएगा, ध्यान देंगे। इनका मानना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जनरली जो डिफाइन किया जाता है इसमें कि हमारा मटेरियल वेलफेयर कितना हो रहा है, खास करके कि हमारा जो लोएस्ट इनकम है, ठीक है, लोएस्ट इनकम बढ़ रहा है कि नहीं, दी एरेडिकेशन ऑफ मास पॉवर्टी, जो हमारी गरीबी है वो उसमें कहाँ तक काम किया जा रहा है, गरीबी को कहाँ दूर किया जा रहा है, इलिटरेसी, डिजीजेज एंड अर्ली डेथ्स, बहुत सारे लोग अर्ली डेथ्स होता है कुपोषण के कारण, तो इन सब बीमारियों पे या अर्ली डेथ्स पे या लिटरेसी पे इन सब पे जोर दिया जा रहा है। The orientation of economy is such a way that productive employment is generally among the working age population rather than the situation of the privileged minority, and the corresponding greater participation of broadly based group is making decision about the direction economics is otherwise in which they should move to improve their welfare। यानी ओवरऑल इकोनॉमी यही कहता है कि हम कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यही कहा जाता है कि हम कितना हद तक के लोगों के इम्प्रूवमेंट में काम कर रहे हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए कितना बेहतर काम कर रहे हैं। अगर हम वेलफेयर को ज़्यादा एश्योर करें, इट मीन्स कि वह देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है। अब देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज वाइडर कंसेप्ट विच नॉट ओनली इंक्लूड इकोनॉमिक ग्रोथ but also take care of such aspect of economic life as more equitable income distribution greater। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक वाइडर कंसेप्ट है जो कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ से इसको हम जोड़ के नहीं देख सकते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो आप समझ गए कि कितना जीडीपी जीएनपी हो रहा है, अगर नेशनल इनकम बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, दिस इज इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन सिर्फ यही तक हम सीमित की सरकार गवर्नमेंट को ये टारगेट सिर्फ नहीं है कि बाय हुक्स और बाय क्रुक्स वी आर इंक्रीजिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कभी कभी जॉबलेस ग्रोथ भी होता है। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो रहा है बट जॉब्स आर आल्सो कटिंग। जैसे अभी फिलहाल इंडिया का भी ले सकते हैं आप, ग्रोथ रेट है बट जॉब्स आर नॉट देयर, जॉब्स कटिंग ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है लगभग। तो इकोनॉमिक ग्रोथ से आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नहीं देख सकते हैं, मतलब कि उसको ठीक करना जोड़ना सिर्फ नहीं है, बल्कि इसके अंदर और भी इकोनॉमिक लाइफ डिस्ट्रीब्यूशन सही होना चाहिए। अब देखिए क्या इसमें दे रहा है, जरा गौर करेंगे तो वाइडर पार्टिसिपेशन ऑफ वीकर एंड नेग्लेक्टेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन द ग्रोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब कि अब ये देखें कि कितने अभी जो पुअर सेक्शन के लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी के लोग हैं, इनको हम इकोनॉमिक प्रोसेस में अगर इंक्लूड नहीं कर सकते हैं तो दिस इज नॉट दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सोसाइटी का मैक्सिमम हैंड्स को क्या करना है, वी हैव टू ज्वाइन। और ग्रोथ क्या होता है कि
despite isolation from the people, we can increase the per capita income or we can increase the growth rate. Jobless growth rate हम increase कर सकते हैं, but without the participation of the people, we cannot assure economic development in a country. ध्यान देंगे. Next. अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट इक्वल टू इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस चेंज. हाँ ठीक है, हाँ बहुत बहुत अच्छा है. एक तो मान लो कि ग्रोथ 9% हुआ देश की इकोनॉमी का, तो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ. बस अब आप बहुत बेहतर तरीके से आप लोग समझना शुरू करेंगे. If the growth rate is 9%, per capita income such and such, it means this is economic growth. But by economic growth, what changes have been made in our economy? अगर जो बदलाव आया वो क्या है? मतलब कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ भी आया और चेंजेस भी आया, दोनों आया. चेंजेस में क्या आया? मान लो इंफ्रा बना, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं. तो अगर ये सारे अगर सेटिंग किया जा रहा है हमारी इकोनॉमी के अंदर में तो अच्छी बात है. इसका मतलब है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है हमारा. बहुत क्लियर, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए. बड़ा डिटेल्स में मैंने बता दिया कि दोनों में अगर बड़े लंबे नोट्स भी लिखना है तो भी आप लिख सकते हैं कि in term of percentage, the percentage of GDP, the percentage of per capita income and percentage of such and such. These are the part of economic growth. But through this growth, what changes has been occurred in our economy? What transformation have come in our economy? तो जो ट्रांसफॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है उस दोनों को मिलाकर के हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाता है. इट इज नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. बिल्कुल सही है. अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बट फॉर बीइंग कॉल्ड डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेन्ड इंक्रीज इन इनकम मस्ट आल्सो ब्रिंग अबाउट changes such as changes in the composition of output or national income, changes in occupational structure, changes in income distribution, changes in institutional framework. क्लियर है? अब देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए नेसेसरी कंपोनेंट. ये इकोनॉमिक जो बहुत जरूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, मतलब बिना इसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता है. ये भी जरूरी है. आई एम नॉट डिस्कार्डिंग दिस. मैं इसको बात को काट नहीं रहा हूं कि इकोनॉमिक ग्रोथ से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता है. इकोनॉमिक ग्रोथ हेलो जा रहा है ना. तो यहां पे ये देखना है कि आई एम नॉट डिनाइंग द ग्रोथ रेट, आई एम नॉट निग्लेक्टिंग द ग्रोथ रेट, बट आई suggest that growth rate must be equitable. Growth rate must be, there must be trickle down, application of trickle down theory. The people who are standing at the last in the queue will also be benefited. Otherwise there may be economic growth but not development. But for the economic development the policy makers should assure that the growth rate should be enjoyed by each and every people, every segment of the society. This is a major thing here. So, but for being called development, economic growth must also bring about changes such as change in composition of output or economic national income, changes in composition, occupational structure. So there should be transformation. Economic growth should be in the form of transformation in the shape of our economy. There should be setting up infrastructure, buildings, colleges, schools and other infrastructures. Thus economic development is no longer considered synonyms with the economic growth. इसलिए हम इसको सिर्फ ये ना मान लें कि उसका synonyms है.
कि दोनों एक ही, सिनोनिम्स का मतलब ये सिर्फ दोनों में ये नहीं है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक दूसरा मीनिंग होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, या इकोनॉमिक ग्रोथ का एक दूसरा मीनिंग होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऐसा नहीं मानेंगे। दोनों डिफरेंट चीज़ें, दोनों दो चीज़ें, दोनों दो फैक्टर्स हैं। इट इज अ वाइडर कंसेप्ट विच इंक्लूड ग्रोथ प्लस चेंज, यानी डेवलपमेंट क्या कहता है कि ग्रोथ हो प्लस चेंज हो, चेंज इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इन प्रोडक्शन स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, change in allocation and production productive resources, सब में बदलाव हो। In brief, it includes all those changes which are necessary for raising output, reducing inequality and employment, and elevating mass poverty, are these being essential goals of economic growth development। यानी ये सब बहुत क्लियर है यहाँ पे हमने बहुत सारे बड़ा क्लियर कर दिया। इस पॉइंट में बहुत क्लियर है कि फिर से एक बार जानना है कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ से दिक्कत नहीं है, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, वो मस्ट है। बिना इकोनॉमिक ग्रोथ का कुछ नहीं होता है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ का परकोलेशन सोसाइटी के तमाम सेगमेंट में जा रहा है कि नहीं, उसका जो बेनिफिट्स हैं वो सोसाइटी के लोग उठा रहे हैं या नहीं। तो सिर्फ ग्रोथ रेट जो होता है, रेट्स हैं, वो ग्रोथ रेट है। बट डेवलपमेंट इज अ वाइडर कंसेप्ट। डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि दैट चेंज इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इज देयर चेंजेस इन द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स में होता है, इट मीन्स द पीपल आर इन द प्राइमरी टाइम, इन द एंशिएंट टाइम, our main occupation was agriculture. After agriculture we have growth rate, we have gained growth rate, and by this growth rate we have gained new technology, new knowledge, and we are involved in food processing. Diversification of industries also taking place in our country. So some people are being shifted from agriculture to other sectors, service sector, business sector, other sectors. So occupational structure should be changed there. Is the occupational structure changing or not? Each production structure in institutional and organizational setup is changing or not? Change in allocation of productive resources, etc. In brief, it includes all those changes. तो सच में इसमें संक्षिप्त में कहा जाए तो सारे जो necessary, which are necessary for raising, यानी सब का मतलब सब, अगर सारी चीज जो कि जितने भी सोर्सेज हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, आर दे इंक्रीजिंग द बेटर स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, आर दे फेवरेबल टू लिटरेट अस, आर दे फेवरेबल टू ब्रिज अप द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। अगर ये सब हो रहा है हमारे देश में या किसी भी इकोनॉमी में, क्या गरीबी अगर घट रही है किसी भी इकोनॉमी में, अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है किसी भी इकोनॉमी में, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, लोगों की सुविधा वेलफेयर हो रही है, बढ़ रही है, डे बाय डे बढ़ रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी लोगों को मिल रहा है, पीने का पानी मिल रहा है, शिक्षा मिल रहा है, स्वास्थ्य मिल रहा है, आम लोगों को, कॉमन पीपल को, सारे लोगों को मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। यही डेवलपमेंट है। मतलब कि ग्रोथ रेट तो हुआ, पर ग्रोथ रेट डजंट एश्योर the development of the society. It is the narrow concept. Growth rate means, yes, we have gained 10% growth rate, 9% growth rate, 15% growth rate, but we are not availing the growth. The common people are not availing the growth. We are not getting the facilities of welfares like drinking water, like electricity, like proper education, like proper health services. That's why on this point, the growth rate contradicts the growth rate negates the, overlook the development process. But when the growth rate, by growth rate we are getting these facility, it means the growth rate is inclusive and we are getting the benefits of the growth rate. It will ensure and it will assure the development of the economy. Next, the contemporary development economists are no longer impressed by the growth performance as reflected by the rise of GNP. They concentrate on measure to make direct attack on the problems of poverty. अब जो आप देखिएगा कि अभी जो
कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट मानते हैं, जो इकोनॉमिस्ट का मानना है कि देखो भाई ग्रोथ रेट अब आपका क्या हो रहा है वो अलग बात है, वो ग्रोथ रेट तो ठीक है, ग्रोथ रेट है तो ठीक है, उसको हम कट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उसको विकास नहीं मानेंगे। विकास तो तब मानेंगे कि हमारी गरीबी इक्वलिटी दूर हो रही कि नहीं, पॉवर्टी दूर हो रही कि नहीं, इनइक्वलिटी दूर हो रही कि नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो रही कि नहीं। द करेंट थिंकिंग एंड अप्रोच टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ब्यूटीफुली सम द महबूब उल हक। अब इसके बारे में महबूब उल हक एक बड़ा इकोनॉमिस्ट है, पाकिस्तान के रहने वाले हैं, थे या हैं अभी भी। तो इनका मानना है, इन्होंने बताया है, यहाँ पे हम लोग अच्छे से देखेंगे तो आप समझ गए इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। मुझे लगता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट पे आपका एकदम वेल रिसर्च हमने आपको बहुत हद तक बेहतर बताने की कोशिश किया है इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से, कि आपको मैक्सिमम चीज़ों को समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ क्या। पहले तो हमने दोनों को बताया कि ठीक है हम इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेकर के चलते हैं, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया या फिर हमने डील किया कि नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ एक क्या है, एक नैरो कॉन्सेप्ट है कि ठीक है ग्रोथ है, पर एक वाइडर कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ एश्योर कर भी सकता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और नहीं भी कर सकता है, दोनों चीज है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ फिर भी होना जरूरी है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के माध्यम से आप कितना इकोनॉमिक ग्रोथ का परकोलेशन के बाद जो रिजल्टेंट होता है, हम इकोनॉमिक ग्रोथ देश के अंदर वो जीडीपी 3% हुआ, लेकिन इसका जो स्प्रेड हो रहा है, इसका जो फैलाव विस्तार हो रहा है कि मैक्सिमम कितने लोग बेनिफिट गेन कर रहे हैं। अगर बेनिफिट कम लोग गेन कर रहे हैं तो विकास कम हो रहा है। डेवलप ग्रोथ 10% है, ग्रोथ परसेंट मार्वेलस है, पर इसका अगर परकोलेशन स्प्रेड बेनिफिट अगर कम लोगों तक है तो हम कहेंगे कम विकास हुआ है, और ज्यादा लोगों तक कहें तो ज्यादा विकास हुआ। इसलिए हमने ट्रिकल डाउन थ्योरी का जिक्र किया कि इसलिए विकास दर यानी ग्रोथ रेट जिस रेशियो में हुआ, उस रेशियो में अगर उसका परकोलेशन है, सोसाइटी के सारे हिस्से के लोग उसको बेनिफिट कर रहे हैं, तो इट विल एश्योर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे कहा है कि इन पे जोड़े कि ये हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं। द करेंट थिंकिंग एंड द अप्रोच टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ब्यूटीफुली समड अप बाय द महबूब। ये पाकिस्तान का लीडिंग इकोनॉमिस्ट है। इन द फॉलोइंग ये कहते क्या है, जरा गौर करेंगे। महबूब उल हक, इसने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, SDI के बारे में इसने ये सिद्धांत दिया, जिसको कि विश्व बैंक प्रति वर्ष पूरे दुनिया में SDI रिपोर्ट जारी करते हैं, और इसके हिसाब से देखा जाता है कि देश के क्या विकास हुआ है, क्या तरह। उसमें जीडीपी का ग्रोथ रेट नहीं देखा जाता है कि जीएनपी का ग्रोथ रेट कितना हुआ, ये नहीं देखा जाता, बल्कि वहाँ के लोग को वेलफेयर के रूप में क्या मिल रहा है ये देखा जाता है। इसने कहा है कि द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट must be defined as the selective attack on the worst form of poverty। इसने कहा है, इसका लाइन है, the problem of development must be defined as selective attack on the worst form of poverty। यानी जो विकास की जो समस्या है वो उससे डिफाइन होना होगा सेलेक्टिव अटैक ऑन दी वर्स्ट फॉर्म ऑफ पॉवर्टी पे। जो गरीबी का सबसे बेस्ट फॉर्म होता है उस पे अटैक होना चाहिए कि लोग कितनी बुरी स्थिति में लोग जीवन जी रहे हैं। डेवलपमेंट गोल्स मस्ट बी डिफाइंड एज टर्म ऑफ प्रोग्रेसिव रिडक्शन एंड इवेंचुअल एलिमिनेशन ऑफ malnutrition, डिजीज, लिटरेसी, स्कैडर और वगैरह वगैरह में। मतलब कि डेवलपमेंट का गोल जो कह रहा है ना कि ऐसे होना चाहिए, विकास की जो लक्ष्य जो है, विकास के जो टारगेट हैं उनमें ये हम करें कि हम कितना गरीबी के ऊपर में, हम कुपोषण को हम कितना प्रोग्रेसिव रिडक्शन मानी कितना तेजी से हम कमी ला रहे हैं। किसमें? तो गरीबी कुपोषण में कमी ला रहे हैं, बीमारी में कमी ला रहे हैं, शिक्षा में कमी ला रहे हैं, बेरोजगारी में कमी ला रहे हैं, इनइक्वालिटी में कमी ला रहे हैं। इसमें हम कितनी कमी ला रहे हैं? अगर इन सब को बहुत तेजी से गिरा रहे हैं, अगर कम कमी ला रहे हैं, इलिटरेसी दूर हो रहे हैं, पॉवर्टी दूर हो रहे हैं, बहुत तेजी से हम गरीबी रेखा से लोगों को बाहर ला रहे हैं, लोगों को स्वस्थ रख रहे हैं, तो वी आर taught to take care of our GNP because it would take care of poverty। We were taught to take care of our GDP। हमें बताया गया है कि हम GDP का ये रखें, क्योंकि यह it would take care, क्योंकि हमारा अगर GDP ठीक होगा, GNP ठीक होगा, नेशनल इनकम ठीक होगा,
तो इसी नेशनल इनकम से क्या करेंगे हम, वो हमारी गरीबी को भी चेक करेगा। दैट्स वाई फिर से हम कहेंगे हमें जीएनपी चाहिए, हमें बेहतर जीएनपी चाहिए, हमें नेशनल इनकम, साउंड नेशनल इनकम चाहिए, हमें ग्रोथ रेट बेहतर चाहिए, क्योंकि यही ग्रोथ रेट क्या करेगा, हमारे गरीबी को ठीक करेगा। लेट अस रिवर्स दिस एंड टेक केयर ऑफ पॉवर्टी बिकॉज इट विल टेक केयर ऑफ, और अब ठीक उसका उल्टा दे रहा है। कितना अच्छा थ्योरी देखेंगे। अब है इसको हम रिवर्स कर देते हैं। अब रिवर्स करते हैं, अगर हम गरीबी को केयर करेंगे, अगर गरीबों को ध्यान में रखेंगे तो इट विल टेक केयर ऑफ आवर जीएनपी, तो हमारे जीएनपी में विकास होगा। मतलब दोनों में क्या है, एक तरह से एकदम इंटर रिलेटेड संबंध है कि वी वेर टाउट, हमें यही बताया गया कि हम जीएनपी को केयर करेंगे क्योंकि यही जीएनपी हमारे गरीबी को केयर करेगा, और हम गरीबों को केयर करेंगे क्योंकि यही गरीबी क्या करेगा, हमारे जीएनपी को केयर करेगा। मतलब कि जब हमारा जीडीपी बढ़े, नेशनल इनकम बढ़े, तो हम सबसे पहले गरीबी दूर करने के उपाय करें, क्योंकि जब ये गरीबी दूर हो जाएंगे तो फिर ये जीएनपी में क्या करेंगे, मैक्सिमम वेलफेयर और मैक्सिमम जीएनपी को कंट्रीब्यूट करेंगे, और अल्टीमेटली आवर इकोनॉमी विल बी अ वेरी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री स्टेट बनेगा। लेट अस रिवर्स, ये समझ गए। इन अदर वर्ड्स, लेट अस worry about the content of our GNP even more than its rate of कितना अच्छा बात का यहाँ पे कह रहा है क्या, कि अब हम देखें कि कंटेंट ऑफ जीएनपी, हमें चिंता होना चाहिए जीएनपी के कंटेंट के बारे में, इवन मोर देन इट्स रेट ऑफ, है ना। तो हम उनके बारे में देखेंगे, ना कि हम कितना हमारा ग्रोथ रेट हो रहा है। ग्रोथ रेट ज्यादा हो कम हो, लेकिन कंटेंट क्या कहता है, कंटेंट का मतलब कि जीएनपी में से अगर हमारा ग्रोथ रेट 80% हो, और इसमें हमारा अगर पॉवर्टी के ऊपर में, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर में अगर काम किया जा रहा हो, तो वो ज्यादा बेटर है 10% ग्रोथ रेट से। मतलब हम ग्रोथ रेट के परसेंटेज को ना देखें, बल्कि वी शुड ऑब्जर्व द कंटेंट ऑफ द ग्रोथ रेट। क्लियर है। अब देखेंगे द एसेंशियल पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। तो मैंने बहुत क्लियर करके आपको समझाया यहाँ पे कि क्या है, और आगे आपने महबूब उल हक के बारे में भी देखा कि उन्होंने क्या बताया कि डेवलपमेंट होता क्या है। अब एक सिंपल अगर भाषा में आप समझ लो, तो बहुत आम आदमी की भाषा में अगर कह दें कि मान लो कि आपके घर में 4 भाई हैं, नो डाउट 4 भाई हैं। एक भाई अगर आपका बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाता है, अमेरिका में जाकर बस जाता है, पर अब 3 भाई अगर अनएम्प्लॉयड हैं, इट मीन्स कि आपके घर का ग्रोथ रेट तो हो सकता है, 4 भाई हैं तो 4 भाई का ग्रोथ, आप कह सकते हैं मेरा भाई 10 लाख रुपया महीना कमाता है, ये ठीक है, 10 लाख रुपया वो महीना कमा रहा है, वो साल का 1 करोड़ 20 लाख रुपया कमा रहा है, ये भी सही है। अब 1 करोड़ 20 लाख को अगर पर कैपिटा इनकम में जोड़ना चाहो, करना चाहो, तो 4 से भागा दे दो, मतलब सभी को 30-30 लाख रुपया मिल रहा है। पर आर यू गेटिंग? नो, आप नहीं पा रहे। यह ग्रोथ रेट है, यह ग्रोथ रेट है। ग्रोथ रेट 1 करोड़ 20 लाख रुपया आपके घर में इनकम है, आपके फैमिली का इनकम है, फैमिली का इनकम है, बट आपका इनकम कुछ भी नहीं है। आप और एवरेज निकालने पर 30 लाख आप भी आ रहे हैं, पर आपको उस 30 लाख का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, बल्कि 3000 का भी बेनिफिट नहीं हो रहा है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि वी शुड ऑब्जर्व द कंटेंट। लेकिन हाँ, अगर मान लो कि आपका, तो ये डेवलपमेंट नहीं हो सकता, ग्रोथ हो सकता आपके परिवार का, कि दिस इज ग्रोथ ऑफ योर फैमिली, नॉट डेवलपमेंट ऑफ योर फैमिली। लेकिन अगर आप में से सारे 4 भाई अगर नौकरी करते हैं और 1-1 लाख रुपया भी महीना कमाते हैं, तो 12 लाख रुपया कमाए, और 12 का आप 12 लाख रुपया एक आदमी कमाते, 12 को 48, यानी 48 लाख रुपया साल का कमाए, तो पर कैपिटा इनकम 12 लाख है। मतलब इनकम कम है, पर फैमिली का इनकम कम है, लेकिन प्रोग्रेस ज्यादा है, क्योंकि ये प्रोग्रेस सभी का है, 4 भाई का प्रोग्रेस है, 4 भाई की बेहतर जिंदगी जी रहा है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब गौर करेंगे द एसेंशियल पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज ब्रीफली एज फॉलो। अब इसमें कुछ पॉइंट्स के माध्यम से हम आपको बताना चाहें कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंज। इकोनॉमिक ग्रोथ में मात्रात्मक चेंज होता है, ग्रोथ इन रियल इनकम आउटपुट, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट also involve the qualitative change such as more equitable income distribution, poverty and elevation। अब मान लो कि अगर
अगर हमारे देश का जीडीपी 10 से 11% हो जाए तो चलो 1% का बढ़ोतरी हुआ हमारे देश का आउटपुट हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसका हुआ। इस ग्रोथ में हो सकता है कुछ लोग का हुआ, सभी लोग का नहीं हुआ। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ क्या करता है कि क्वालिटेटिव चेंज, क्वांटिटेटिव चेंज तो हुआ 1%, पर मोहन श्याम अब्दुल का भी इनकम में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हुआ, सभी के इनकम में बढ़ोतरी हुआ, इक्विटेबल इनकम हुआ, और कुछ गरीबी भी घटी। गरीबी अगर मान लो कि 30% से 28% घटी, 28 से घट के 25% हुई, तो ये सब जो चेंजेस होते हैं ना, वो ये डिफरेंस है दोनों में। इकोनॉमिक ग्रोथ में नॉट लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कोई जरूरी नहीं कि इकोनॉमिक ग्रोथ से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, एज इंक्रीज इनकम में लीड to greater equality and larger poverty and bigger unemployment increase. Output is not result of the greater use of capital intensive technology, which may not create new jobs and concentrate income in the hands of the rich capitalist. जैसा आज अभी देख रहे हैं आप, देश की जीडीपी गिर रही है, पर कैपिटा इनकम भी गिर रहा है। लेकिन आज देखोगे कुछ इंडस्ट्रीज लो, जैसे आप अंबानी का देखिए, अडानी का देखिए, कितनी इनकम उनकी बढ़ रही है। ऐसा भी होता है, बेस्ट एग्जांपल है। ये हो सकता है कि ग्रोथ रेट हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जॉब भी बढ़ सकता है। ग्रोथ रेट बेहतर हो सकता है, लेकिन जॉब्स बढ़े कोई जरूरी नहीं है, गरीबी घटे कोई जरूरी नहीं है। तो यही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में नॉट लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नहीं भी हो सकता है, एज इन इंक्रीज्ड इनकम में लीड अ ग्रेटर इनइक्वालिटी, और यह क्या करेगा, इनइक्वालिटी को बढ़ा देगा, एंड लार्जर पॉवर्टी एंड बिगर अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और बढ़ जाएगी, जैसे लोग का वो एक्सपेक्टेशन होगा, और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। इफ एन इंक्रीज आउटपुट इज द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर यूज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव, और अगर आउटपुट बढ़ जाएगी ऑफ द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर यूज ऑफ, तो फिर क्या होगा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी आप लाइएगा, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी, जिससे कि बड़े बड़े टेक्नोलॉजी लगा देंगे हर जगह, तो सबसे पहले क्या होगा, जॉब कट जाएगा, जॉब कटिंग होगा, विच मे नॉट क्रिएट न्यू जॉब्स एंड कॉन्सेंट्रेट इनकम इन द हैंड्स ऑफ द, और पूरी टेक्नोलॉजी से कमा करके क्या लेगा, एक पूंजीपति लोग अपने सारे पैसे अपने हाथ में रख लेगा। अब जैसे मान लो कि अगर कहीं पे मिट्टी का कारोबार हो रहा है, लोग अगर काम करना चाहते हैं कि नहीं भाई हम मिट्टी का काम करेंगे, बांध बनाएंगे, बगैर बनाएंगे, पर वहां पे क्या करता है ठेकेदार, अगर उस पर क्या करे, ले जा करके लोग वहां काम करना चाह रहे हैं, हजारों लोग, हजारों की संख्या में चाह रहे हैं कि मिट्टी कट के, उसमें तो कोई टेक्नोलॉजी का जरूरत है नहीं, कोई एक्सपर्टी की जरूरत भी नहीं है। लेकिन टेक्नोक्रेट्स क्या करेगा, टेक्नोक्रेट्स कह रहे हैं आपको, ठेकेदार क्या करेगा, या जो उसका वो सीधे मशीन से जेसीबी से मिट्टी को लगवा देगा, वहां पे बांध बन गया, पैसा किसको आया, पूंजीपति को आया, और हजारों लोग हाथ बेकार पड़ गए। तो इससे क्या होगा, कैपिटल का कंसंट्रेशन। तो सरकार को ऐसे में एश्योर करना चाहिए कि नहीं, कोई जब टेक्नोलॉजी की कोई बहुत जरूरत नहीं है, मिट्टी बांध बनाना है मिट्टी से, या कहीं घेरेबंदी करना है मिट्टी से, तो चलो लेबर अगर दे आर रेडी टू वर्क, हमें उससे काम कराना, जैसे मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, तो आप उससे कराएंगे, गारंटी प्रोग्राम है वो, तो नहीं। तो ऐसे में क्या होगा, टेक्नोलॉजी विल कट, रिड्यूस द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एंड देयर विल बी कंसंट्रेशन ऑफ इनकम इन द हैंड्स ऑफ फ्यू इंडस्ट्रिस्ट। मुट्ठी भर हैंडफुल कैपिटलिस्ट क्या करेंगे, वो पूरे जो पूंजी है उसको वो करेंगे, डिक्टेट करेंगे। However, economic development by itself does lead to economic growth, as more employment and poverty alleviation measure would increase income as well. तो क्लियर है।